Hello everybody, welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So in this video we are going to discuss the objective questions for the exercise, and in the previous video we have covered all the examples. Okay, so let's get started. So in the first question it is given that T be the set of all the triangles in the Euclidean plane, and the relation is defined on T be defined as A is related to B if A is congruent to B for all A comma B belongs to set of triangles. Okay, so we have a components A and B type of elements from the set of triangles. So first we will show whether it is reflexive or not. Okay, so now consider A comma A belongs to relation R. So we can say that any triangle is congruent to itself, right? So this implies A is congruent to A. That implies my relation R is reflexive relation. Okay. So now in the next part, we have to check whether it is symmetric or not. Symmetric means if suppose let A comma B ordered pair belongs to R. That means A is congruent to B. That means A is congruent to B. So if A is congruent to B, that means if this triangle is congruent to this triangle, this is A, this is B. So I can say that B is also congruent to A. If B is congruent to A, that implies B comma A belongs to my relation R. So therefore our relation is symmetric also. So my relation is reflexive and it is symmetric. Next we have to check that whether it is transitive or not. Okay. So for transitive, consider A comma B ordered pair belongs to R and B comma C ordered pair belongs to R. So that means there is one triangle, there is another triangle, and there is third one. So this is A, B, C. So if A is congruent to B and B is congruent to C, then I can say that A triangle is also congruent to C triangle. Okay, so this implies A is, or I can say A is congruent to B and B is congruent to C. If B is congruent to C, that implies that A is also congruent to C. So therefore A comma C also belongs to R. This is relation R. So if A comma C also belongs to R, that implies my relation R is transitive. So if relation is reflexive, symmetric and transitive, then I can say that it is an equivalence relation. So here part C is correct. Okay, so now in the next question, it is given that consider a two non-empty set consisting of children in a family and the relation R is defined between the children. Okay, and it is A related to B if A is a brother of B. Okay, so again we have to check whether it is symmetric or not, or it is transitive or not. Okay, so now we will check for the symmetry. Now for symmetry, let A comma B one ordered pair belongs to R. If A comma B belongs to R, this implies that A is brother of B according to the definition of relation, right? A is the brother of B. So अगर A brother है B का, so is this implies that B is also brother of A? No, B can be sister of A na. So this does not imply B is also brother of. This does not implies that B is brother of A. So this implies B comma A does not belongs to R. So if B comma A does not belongs to R, this implies R is symmetric. R is not symmetric. Okay. So this relation is not symmetric. Next we have to check for transitive. Is it transitive or not? Right. So for transitive, consider A comma B and B comma C belongs to R. So I can say that A is brother of B, A is brother of B, and B is brother of C. B is brother of C.
So if A is brother of B and B is brother of C, so I can say that A is also brother of C. A is brother of C also. So this implies A comma C belongs to R. If A comma C belongs to R, this implies R is transitive relation. So I can say that R is not symmetric, but it is transitive. So which option is correct? Here option B is correct because it is transitive but not symmetric. Okay. So now in the next question, the maximum number of equivalence relation on a set A. Okay, so अभी हमको क्या करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है कि हम एक सेट से जिसमें 3 एलिमेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब ऐसे रिलेशन होने चाहिए जो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है. ठीक है, अब हमें ऐसे रिलेशन बनाने हैं तो हम क्या करेंगे? 1 by 1 सबसे छोटे वाले रिलेशन से शुरू करेंगे. ओके, तो मैंने सबसे पहला रिलेशन लिया R1 जिसमें मिनिमम वो एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए. तो अगर मैंने किसी भी सेट में 1 1 2 2 3 3 ये ऑर्डर्ड पेयर लिया तो ऑब्वियस सी बात है ना, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा. ठीक है, बिकॉज रिफ्लेक्सिव होने के लिए मिनिमम इतने तो चाहिए ही चाहिए. तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो मस्ट है. उसके बाद अब क्या ये सिमेट्रिक भी है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है. 1 1 का जब रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो भी 1 1 आएगा. सो दिस इज सिमेट्रिक ऑल्सो. अब जब ट्रांजिटिव की बात आती है तो ट्रांजिटिव में हम क्या बोलते हैं कि A कॉमा B और अगर B कॉमा C ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर R में है तो अगर A कॉमा C भी R में हो जाएगा तो हम बोल देते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा. बट यहाँ देखो, अगर हमने कोई A कॉमा B ऑर्डर्ड पेयर लिया तो B कॉमा C तो है ही नहीं ना. B कॉमा C जब आएगा तब उस यहाँ तक की बात पहुंचती है, लेकिन जब B कॉमा C ही नहीं है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि B कॉमा C नहीं है. अगर B कॉमा C है और उसके बावजूद ये नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ट्रांजिटिव. ठीक है, तो इसका मतलब जब B कॉमा C ही नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ ना कि ये ट्रांजिटिव भी है. तो पहला इक्विवेलेंस रिलेशन तो मुझे मिल गया. ठीक है, अब बात आती है दूसरे की. तो अब जब दूसरा भी मैं बनाऊंगी ना तो 3 एलिमेंट्स ये तो मस्ट होने ही चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ही नहीं. ओके, अब ये 3 तो मैंने डाल दिए. अब इसके अलावा मुझे देखना है कि मैं क्या क्या डालूं. अब देखो, मैंने अगर सपोज 2,3 ऐड किया, ठीक है, 2,3 लिया तो मुझे सिमेट्रिक बनाने के लिए 3,2 भी लेना पड़ेगा. ठीक बात, 3,2 लिया तो ये सिमेट्रिक बन गया. रिफ्लेक्सिव ये ऑलरेडी है. अब चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं. ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक करने के लिए मैंने क्या किया, एक 2 3 ऑर्डर्ड पेयर लिया और एक 3 2 ऑर्डर्ड पेयर लिया. तो 2 3 और 3 2 अगर है R में तो क्या 2,2 भी है R के अंदर? वो भी है हमारे पास. तो इसका मतलब ये भी मेरे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया. अब इसी तरीके से अब अगर मैंने शुरू के 3 एलिमेंट्स तो मुझे फिक्स रखना है, ये तो मैं नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव बनाएंगे रिलेशन को. अब मैंने क्या किया, एक लिया 2,1 और अगर मैंने 2,1 लिया है तो मुझे 1,2 भी लेना पड़ेगा. तो ये भी वापस से क्या बन जाएगा, ये फ्लेक्सिव भी है क्योंकि ये 3 एलिमेंट्स हैं, और ये सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 2 के साथ 2 1 भी है, और ये ट्रांजिटिव भी क्योंकि अगर 2,1 और 1,2 बिलोंग कर रहा है R में तो 2,2 भी बिलोंग करेगा. तो इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंस रिलेशन. अब मैंने R4 लिया, पहला 1 1 2 2 और 3 3, ये 3 तो होंगे ही होंगे. ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक 1 3 एलिमेंट ले लिया और एक 3 1 ले लिया. अब जब मैंने 1 3 और 3 1 लिया तो 1 1 ऑर्डर्ड पेयर भी होगा तो ट्रांजिटिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया क्योंकि 1 3 के साथ 3 1 है, और रिफ्लेक्सिव तो है ही ऑलरेडी. तो एक रिलेशन और ये हो गया. अब जो लास्ट रिलेशन होगा वो होगा अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूं. मतलब अगर मैं 1 1 2 2 3 3 ये तो ले ही रही हूँ, साथ में जो सारे एलिमेंट्स है ना, ये वाले और ये वाले, अगर इन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन ले लूँ 2 3 3 2 देन 1 2 एंड 2 1, देन द लास्ट पेयर इज 1 3 एंड 3 1. ठीक है, तो अब इसको भी हम लोग वापस चेक कर सकते हैं क्योंकि एक तो रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर सबके हैं तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो है. अब मुझे अगर ट्रांजिटिव चेक करना है, सपोज मैंने 1 3 लिया और एक 3 2 ले लिया तो 1 3 और 3 2, 1 3 और 3 2 के साथ जो AC मिलेगा वो 1 2 होना चाहिए. तो 1 2 इज ऑलरेडी देयर. तो अब मैं किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ चेक करूं तो मुझे हमेशा ये ट्रांजिटिव मिल जाएगा. तो मेरे पास मतलब 5 रिलेशंस हो गए, 5 ऐसे इक्विवेलेंस रिलेशन मिल गए. तो ये कितने होंगे, मैक्सिमम 5. तो D इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, so now in the 31st question,
it is given that relation R on the set be defined as, अब रिलेशन को डिफाइन कैसे किया है, इसमें सिर्फ एक एलिमेंट है 1 2, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि ओनली ये एलिमेंट होने के साथ ये क्या, कौन सा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या फिर सिमेट्रिक होगा, ठीक। तो सबसे पहले जब भी मैं ये सेट पे अगर मैं रिलेशन डिफाइन कर रही हूँ ना, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसके अंदर 1 1 2 2 और 3 3 ये 3 एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए। अब ये नहीं है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। अब बात आती है सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कैसे होगा, सिमेट्रिक तब होगा जब 1 2 के साथ, अगर 1 2 तो है आर के अंदर, बट 2 1 है क्या आर के अंदर, 2 1 तो नहीं है, राइट। अगर 2 1 नहीं है सो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब बात आती है ट्रांजिटिव की, ठीक है। तो अब ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव चेक करना है मुझे अब। तो ट्रांजिटिव तो ये होना चाहिए, क्योंकि 1 2 तो है इसके अंदर, लेकिन 1 2 के साथ अनदर ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, ठीक है ना। 1 2 है, मतलब मैं ट्रांजिटिव के लिए क्या बोलती हूँ कि अगर a, b और b, c ऑर्डर्ड पेयर है आर के अंदर, तो मैं बोलती हूँ कि अगर a, c भी अगर ऑर्डर्ड पेयर होगा आर के अंदर, देन इट विल बी ट्रांजिटिव। लेकिन अगर a, b ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ ही नहीं, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि ट्रांजिटिव नहीं है। सो दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ a, b टाइप का एलिमेंट ही है, b, c तो है ही नहीं, तो ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं ट्रांजिटिव नहीं है, इट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव। ओके, दिस इज वेरी ट्रिवियल, दिस विल बी ट्रांजिटिव। So that means here option B is correct. It will be transitive relation. Okay. This is not symmetric and this is not reflexive. Okay. So now in the 32nd question, it is defined that relation R is A is related to B if A is greater than equals to B. Okay. A is greater than equals to. अब इस relation को बताना है कि ये transitive, reflexive, symmetric है कि नहीं है. Okay. तो अभी अगर हम लोग reflexive का check करें, अगर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, तो मैंने कंसिडर कर लिया कि ए ऑर्डर्ड पेयर आर के अंदर है। अच्छा, अभी ए क्या है, दोनों सेम है ना, ए इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए। सो हमें क्या चाहिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, राइट। तो इक्वल्स टू तो मिल रहा है ना, ग्रेटर नहीं मिल रहा तो इक्वल्स टू तो है, तो इसका मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ए टाइप का आर के अंदर होगा हमारे पास। सो देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया। अब बात आती है सिमेट्रिक की, क्या सिमेट्रिक भी होगा। नाउ फॉर सिमेट्रिक लेट अस अज्यूम दैट a, b ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू आर। इफ a, b आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b। अब इफ a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, so does it implies that b is also greater than equals to a? No, this does not implies. We can take counter example also. If 3 is greater than equals to 2, we cannot say that 2 is also greater than equals to 3, right? This does not implies. So this implies b, a does not belongs to R. So therefore it is not symmetric. Okay. So now अभी हमको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या करूंगी, वापस मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे, a, b एंड b, c बिलोंग्स टू r। सो a, b अगर r के अंदर बिलोंग कर रहा है, इंप्लाइज a ग्रेटर देन होगा b से, एंड यहाँ से मुझे मिलेगा कि b ग्रेटर देन होगा c से। अब देखो, अगर एक नंबर है दूसरे से बड़ा, दूसरा नंबर फिर किसी और नंबर से बड़ा है, तो इसका मतलब जो पहला नंबर है वो सबसे बड़ा होगा ही होगा। a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, और अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है तो a, c हमारे पास R से अंदर बिलोंग कर जाएगा। So this implies it is transitive. So that means this relation is reflexive and transitive, but it is not symmetric. So here option B is correct. Okay. So यहाँ पे हम लोग अगर कोई भी पार्ट में, रिलेशन में अगर हमें दिखाना है कि ये ट्रू नहीं है, तो उसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल भी शो कर सकते हैं। और अगर ट्रू दिखाना है तो हमें वो इन जनरल एलिमेंट के लिए शो करना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये एक सेट ए दिया हुआ है हमको
जिसमें 3 एलिमेंट्स है एंड कंसिडर द रिलेशन एज 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 एंड 1 3 ऑर्डर पे। तो अब मुझे चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब देखो जब भी मेरे पास, पहले तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम लोग, सेट एलिमेंट रिलेशन के 1 1 2 2 एंड 3 3 इज देयर, 1 2 इज देयर, देन 2 3 एंड देन 1 3। अब देखो 1 1 2 2 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया चेक, रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। फिर बात आती है सिमेट्रिक की, क्या सिमेट्रिक हो जाएगा। अब देखो 1 2 तो आर के अंदर है बट 2 1 नहीं है हमारे पास आर के अंदर, तो नहीं हुआ। इसी तरीके से 2 3 तो है आर के अंदर बट 3 2 नहीं है आर के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर बात आती है ट्रांजिटिव की, क्या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। फिर मैंने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1 2 और एक और ऑर्डर्ड पेयर लिया मैंने 2 3। ये दोनों आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है, क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 1 3 इज ऑल्सो देयर, सो दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। सो रिफ्लेक्सिव हो गया और ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या मैं बोल सकती हूँ रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक नहीं है, ये सही लग रहा है। फिर रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव नहीं है, ये नहीं होगा। सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है, ये भी नहीं होगा। नीदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव तो है ना हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। अभी क्या बोल रहा है, द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड ऑन द सेट Q माइनस 0 एज। अभी देखो बाइनरी ऑपरेशन जैसे हम लोग, हमारे पास नंबर्स में क्या होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। अभी बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है, A स्टार B इज इक्वल्स टू AB डिवाइड 2। मतलब अगर मैं कोई भी दो ऐसे रैशनल नंबर लेती हूँ जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दो एलिमेंट्स लेती हूँ जो भी इस सेट में है, उनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, AB डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो अब मुझे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट बताना है। आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब मैंने मान लिया कि हमारे पास लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी देखो आइडेंटिटी एलिमेंट होने का मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट होना मतलब कि अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट का आइडेंटिटी के साथ बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं या फिर आइडेंटिटी के साथ फर्स्ट एलिमेंट का लगाऊं, तो हमें हर केस में ए ही मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास ये आइडेंटिटी है। तो A स्टार E मतलब A इंटू E बाई 2। इसी तरीके से E स्टार A मतलब E इंटू A डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू A। अब ये दोनों ही केसेस में ये A के इक्वल है, इसका मतलब AE बाई 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू A एंड EA बाई 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू A। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, A गेट्स कैंसल्ड, सो E इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से भी मुझे क्या मिल जाएगा, E की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो दोनों ही केसेस में E की वैल्यू आ रही है 2। तो अगर दोनों जगह से सेटिस्फाई हो जाती है कंडीशन, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये एलिमेंट मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ओके, सो यहाँ मेरे पास थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो नाउ इफ द सेट A contains 5 elements and set B contains 6 elements, then the number of 1 1 and on to mapping from A to B। अभी देखो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू एंड 1 1 मैपिंग्स कितना होगा। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास एक सेट है, सॉरी एक फंक्शन है, यहाँ पे A सेट है, यहाँ पे B सेट है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू 1 1 मतलब ऐसी मैपिंग जो 1 1 भी हो ऑन टू भी हो। तो पहले चेक करना है कि क्या यहाँ पे दोनों 1 1 ऑन टू मैपिंग बन सकती है कि नहीं बन सकती। अगर बन सकती है फिर वो कितनी बनेगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट्स है और यहाँ मेरे पास 6 एलिमेंट्स है। तो दैट मीन्स मैं 1 1 मैपिंग तो बना सकती हूँ। मैंने इस फर्स्ट एलिमेंट को इससे मैप कर दिया, देन इसको इससे मैप किया, इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया, देन इसका इससे कर दिया, तो 1 1 मैपिंग तो हो गई। अब देखो जैसे ही मैंने 1 1 मैपिंग कर दी, तो ऐसा तो हो सकता है ना कि हाँ 1 1 मैपिंग किसी और तरीके से की गई हो। ठीक है, तो बहुत सारी 1 1 मैपिंग में बना सकती हूँ, बट लेकिन एक चीज है, जैसे मैं 1 1 मैपिंग करूँ किसी भी तरीके से, बहुत सारे तरीकों से कर सकती हूँ, हमेशा ऐसा होगा कि यहाँ पर एक एलिमेंट हमेशा छूट जाएगा।
अभी वो ये वाला छूटा है, हो सकता है किसी और मैपिंग में कोई और एलिमेंट छूट जाए, फिर हो सकता है ये वाला छूट जाए। तो कोई भी ऐसा एक एलिमेंट हो सकता है जो मेरे पास छूट जाए, और अगर कोई भी एक एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज ना मिल रही हो मुझे, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरे पास फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। और अगर ऑन टू नहीं हुआ तो मतलब मुझे क्या बताना है, वन वन भी हो मैपिंग और ऑन टू भी हो। तो वन वन के साथ तो ऑन टू नहीं हो रहा इस केस में, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी मेरे को कोई भी मैपिंग नहीं मिलेगी, नो वन वन एंड ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट, ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट हेयर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ मेरे पास आंसर 0 आएगा, क्योंकि मेरे पास हो सकता है कि हाँ वन वन मैपिंग अगर अकेला पूछा हो तो मैं बता सकती हूँ कि हाँ इतनी मैपिंग वन वन है। अलग से ऑन टू पूछा जाए तो बता सकती हूँ कि हाँ कोई भी मैपिंग ऑन टू नहीं है। लेकिन दोनों पूछा जा रहा है ना कि वन वन ऑन टू साथ में, तो मेरे पास एक भी मैपिंग ऐसी नहीं होगी जो दोनों बने। ठीक है, अब मुझे क्या बताना है, हाँ अब देखो, अब मेरे पास अलग अलग एलिमेंट्स दे दिए, अब मुझे ना सिर्फ ऑन टू मैपिंग बतानी है। एक सेट है जिसमें ये वाला सेट है ए सेट, और एक ये वाला सेट है बी सेट। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 अप टू एन। ठीक है, इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, इसको एन मान लो। ये मेरे पास है ए और ये मेरे पास है बी। अब मुझे बताना है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कितने होंगे। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बताना है मुझे। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होता है, हर एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिलनी चाहिए, राइट। हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाए मतलब उतने ही मेरे पास ऑन टू फंक्शंस होंगे। अच्छा, अब मेरे को ऑन टू बनाने से पहले ना मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास ये नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होंगे। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन मतलब जो एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, अब मुझे अगर देखना है कि फर्स्ट एलिमेंट है वो कितनों के साथ मैपिंग कर सकता है। मतलब फर्स्ट के साथ अगर मैं एलिमेंट 1 लेती हूँ तो वो ए के साथ भी मैप कर सकता है, बी के साथ भी मैप कर सकता है, दोनों के साथ पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो मेरे पास यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। फिर जो सेकंड एलिमेंट 2 है, अब सपोज करो 1 ने मैपिंग कर ली ए के साथ। ठीक है, तो ऐसा क्या पॉसिबल नहीं है कि 2 जो है वापस ए के साथ मैपिंग कर ले, पॉसिबल है, मैं कर सकती हूँ फंक्शन बनाने के लिए। तो क्योंकि मैं अभी चेक कर रही हूँ सिर्फ वन वन ऑन फंक्शन, अभी मैं सिर्फ टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस देख रही हूँ, वन वन या ऑन टू नहीं देख रही। तो ऐसा हो सकता है ना कि 2 ए के साथ मैपिंग कर ले या 2 बी के साथ कर ले, तो दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अगेन मेरे पास क्या होगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज हो गई। फिर मेरे पास थर्ड एलिमेंट के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, फिर फोर्थ वाले के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। ऐसे ही जो nth एलिमेंट है उसके लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो 2 रेज टू पावर n होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस की। अब बात आती है हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाने हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं ना ऐसे फंक्शंस ढूंढूंगी जो ऑन टू नहीं है, क्योंकि वो ढूंढने मेरे पास आसान है, मैं उनको ढूंढ सकती हूँ, उनको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी टोटल फंक्शंस में से, तो मेरे पास ऑन टू फंक्शंस आ जाएंगे। अच्छा, अब सपोज करो अगर मेरे पास यहाँ पे कोड डोमेन में 2 एलिमेंट्स हैं, मैंने एक केस लिया जब फर्स्ट सेकंड ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ना वो सारे ए पे ही मैप कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मिला के ए पे मैप कर रहे हैं। फिर एक और कंसिडर करो सिचुएशन जिसमें 1 2 3, अब दूसरी सिचुएशन में भी सारे एलिमेंट्स ना सिर्फ बी पे ही मैप कर रहे हैं। तो ऐसे ये सिर्फ 2 केसेस होंगे, क्योंकि अब देखो बी के लिए तो मुझे कोई प्री इमेज नहीं मिल रही ना, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही हो। इसी तरीके से इस केस में ए की कोई भी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट कर रही, तो ये वाला फंक्शन भी नॉट ऑन टू है और ये वाला फंक्शन भी नॉट ऑन टू है। तो मतलब ऐसे 2 मैपिंग्स होंगे जिस केस में ये फंक्शन ऑन टू नहीं होंगे। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस आर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, total number of functions minus number of into functions. Into functions are those functions which are not on to. ठीक है, तो नॉट ऑन टू ये 2 केसेस मिले मुझे, तो 2 रेज टू पावर n में से ये 2 केसेस हटा दिए मैंने, तो मुझे पता चल गया कि 2 मेरे पास ऐसे फंक्शंस होंगे जो नॉट ऑन टू है, और 2 रेज टू पावर n माइनस 2 आर द टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। तो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे पास सही ऑप्शन हो जाएगा। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइन है, मुझे बताना है कि ये फंक्शन कैसा है, वन वन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या डिफाइन ही नहीं है। अच्छा, अभी एक बात अगर हम ध्यान से देखें कि फंक्शन देखो क्या कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन कर दिया इसने आर से आर तक और फंक्शन है 1/x। अब एक चीज अगर ध्यान से देखें तो क्या x की हर वैल्यू के लिए अगर मैंने x को 1 डाला, 2 डाला, 0.2 डाला, 3.4 डाला, कुछ भी डाला, नेगेटिव में भी डाला, -1.2, तो हर वैल्यू के लिए डिफाइन है। लेकिन इसने रियल बोल दिया, रियल बोलते ही मतलब x की वैल्यू 0 भी आ सकती है, बट मुझे पता है जैसे ही मैं x को 0 डालती हूँ तो फंक्शन एट 0 क्या हो जाएगा, 1/0। भाई डिफाइन ही नहीं है ना इस पॉइंट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 ऑन 2 की तो मैं बाद में बात करूंगी ना, तो पहले तो मुझे डोमेन ही अपना सेट सही नहीं किया मैंने, तो फंक्शन हमारे पास डिफाइन ही नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे को फंक्शन डिफाइन करने से पहले चेक कर लेना चाहिए कि जो डोमेन पॉइंट्स लिए हैं उसने सही लिए कि नहीं लिए, तभी मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकती हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे अपने फंक्शन में दो फंक्शन दिए हुए हैं एफ और जी, मुझे मुझे फाइंड करना है जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ। अब जी ऑफ एफ क्या होता है, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। अब नाउ व्हाट इज माय एफ एक्स फंक्शन, आई नो दैट एफ एक्स इज 3x² - 2। तो अभी मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ 3x² - 2, मतलब अब देखो जी एक्स की वैल्यू क्या है, x डिवाइडेड बाय x² + 1, लेकिन मुझे g ऑफ 3x² - 5 निकालना है, मतलब जहां भी x है ना, x को रिप्लेस करना है इस वाली टर्म से। सो दिस इज x, दैट मीन्स x की जगह क्या करना है, ये नंबर डाल देना है, डिवाइडेड बाय x², दैट मीन्स दिस नंबर स्क्वायर प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 3x² - 5 डिवाइडेड बाय a - b होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो ये 9x4 मिल जाएगा, देन प्लस 5² देन माइनस 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30x² + 1। So I can say that my g of f will be 3x² - 5 divided by 9x4 minus 30x², then plus 25 + 1 is 26। ठीक है, दिस इज माई फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो इस तरीके से मैं जी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की वैल्यू में इजीली निकाल सकती हूँ अगर दो फंक्शंस गिवन है तो। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि इनमें से कौन से फंक्शंस, अब देखो फंक्शन डिफाइन सारे कहाँ से कहाँ तक है, z से z, तो मुझे कोडोमेन का और डोमेन का खास ध्यान रखना है जब भी मैं 1 1 ऑन 2 बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी घुमाव कर दूँ ना डोमेन और कोडोमेन में तो तुरंत बदल जाता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं, तो मुझे ये बात का खास ध्यान रखना है। ओके, तो अब मैं पहला फंक्शन अगर चेक करूं कि मेरे पास ये बाइजेक्टिव फंक्शन है कि नहीं है। ओके, सो दिस इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू x³ अच्छा, अब देखो अगर मैं 1 1 चेक करूं कि x³ इक्वल्स टू 1 1 चेक करने के लिए मैं क्या करती हूँ, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेके चल रही हूँ, मुझे शो करना है कि x इज इक्वल्स टू वाई होगा। So x³ will also be equals to y³, so that implies x is equals to y। so ये मेरे पास हो गया 1 1 फंक्शन। क्या ये ऑन टू भी होगा, क्या ये ऑन टू होगा? अब देखो जैसे ही अगर मैं ऑन टू के लिए ना मैं एक काम करती हूँ, मैं कुछ पॉइंट्स लेती हूँ, मैंने x की वैल्यू अगर 1 ली तो एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1। फिर मैंने x की वैल्यू ली -1 तो एफ एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1। ठीक है, अब मैंने x की वैल्यू ली 2, अब ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 2 ली तो मुझे एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 8। फिर मैंने x की वैल्यू -2 ली तो एफ एक्स क्या मिलेगा, -8। अब देखो जैसे 2 और -2 लिया ना तो फंक्शन ने डायरेक्टली जंप कर दिया 8 और -8 पे, तो व्हाट अबाउट द अदर इंटीजर्स लाइक 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5। सो दैट मीन्स अगर ये मेरा 1 है तो 1 ने भी 1 पे मैप किया और -1 ने सॉरी दिस इज 1 एंड दिस इज -1, सो 1 और -1 की मैपिंग तो हो गई। अब जैसे 2 और -2 लेते हैं ना वो सीधा 8 और -8 पे जंप कर जाते हैं, तो बीच में इतने सारे इंटीजर्स हैं जिसका प्री इमेज नहीं मिल रहा है ना, तो प्री इमेज नहीं मिल रहा तो दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू, बिकॉज ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, हर एलिमेंट का कोडोमेन की प्री इमेज मिलना चाहिए, तो दिस इंप्लाइज इट इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या एफ एक्स इज इक्वल्स टू x + 2 है मेरे पास बाइजेक्टिव फंक्शन।
फिर से वही 1 1 फंक्शन चेक करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ वाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई इम्प्लाइज एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू वाई प्लस टू, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब 1 1 तो हो गया ये। अब बात आती है ऑन टू की, क्या ऑन टू भी हो जाएगा? अब देखो अगर मैं x की वैल्यू को 1 लेती हूँ तो फंक्शन मैप हो जाएगा 2 पे, x की वैल्यू को 2 लेती हूँ तो फंक्शन मैप हो जाएगा 3 पे, x की वैल्यू 3 लेती हूँ तो मैप हो जाएगा 4 पे। तो मतलब x की वैल्यू को मैं 0 भी ले सकती हूँ, 0 मैप हो जाएगा 1 पे, -1 लूंगी तो मैप हो जाएगा 1 पे, है ना, 0 -1, यस, तो इट विल बी ऑन 1। फिर -2 लिया तो किस पे मैप होगा? 0 पे मैप होगा। मतलब देखो मुझे हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल रही है, 0 के लिए भी मिल रही है, 1 के लिए भी मिल रही है, 2 के लिए भी मिल रही है, 3 के लिए भी मिल रही है, 4 के लिए भी मिल रही है। यहाँ पे जब मैं -3 लूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? -1, तो -1 के लिए भी प्री इमेज मिल रही है। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फॉर ऑल y belongs to z there exists x belongs to z such that f of x is equals to y. So this implies it is an onto function also. तो ये ऑप्शन तो हो गया करेक्ट। अभी ये हुआ इनकरेक्ट। अभी सी और डी को भी चेक कर लेते हैं कि ऑन टू है कि नहीं, 1 1 है कि नहीं। दिस इज 2x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अभी इसको चेक करते हैं। अब देखो 1 1 तो ऑब्वियस से हो ही जाएगा भाई, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ वाई लेंगे तो एफ एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1। So this implies 2x is equals to 2y, so x is equals to y। तो 1 1 तो हो ही जाएगा, कोई इशू नहीं है। बात आ जाती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए देखो वापस देखते हैं। जब मैंने x की वैल्यू को 0 लिया तो y मिला 1, x की वैल्यू को 1 लिया तो y मिला 3। ध्यान से देखते जाना, x की वैल्यू को 2 लिया तो जंप कर दिया इसने वापस 5 पे। अब देखो जितने भी जो इवन नंबर्स है, व्हाट अबाउट द इवन नंबर्स, तो इवन नंबर का गैप दे दिया ना इसने, मतलब जो भी इवन नंबर्स है ना उसके लिए तो मुझे प्री इमेज मिल ही नहीं रही ना। दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी प्री इमेज फॉर इवन नंबर्स। तो अगर प्री इमेज नहीं मिल रही इवन नंबर्स के लिए तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया मेरा इनकरेक्ट। अब आती है डी पार्ट पे बारी। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ तो सीधी सी बात है 1 1 तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि अगर देखो x की वैल्यू को मैंने 1 लिया और मैंने x की वैल्यू को लिया, अलग ले लेते हैं ना, y ले लिया -1, तो एफ एक्स क्या होगा? 1 स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज 2। और एफ वाई क्या होगा? दिस इज ऑल्सो -1 स्क्वायर प्लस 1, तो दिस इज ऑल्सो 2। अब देखो अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे सेम वैल्यू मिल रही है, अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे सेम मिल रही है, तो इसका मतलब 1 1 तो नहीं हुआ ना ये। तो 1 1 ही नहीं हुआ तो ऑन टू की बात करने की जरूरत ही नहीं है। और ऑन टू भी लेंगे ना तो हमेशा मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कभी भी जो नेगेटिव नंबर्स है ना उनके लिए तो प्री इमेज मिलेगी ही नहीं ना, राइट। तो ऑन टू मेरे को क्या होगा? नहीं मिलेगा। क्यों? नो प्री इमेज फॉर नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन नॉट 1 1 फंक्शन। तो ये भी बाइजेक्टिव नहीं हुआ। तो हमने सारे चेक कर ली ना, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सिर्फ बी ऑप्शन सही आ रहा है। ठीक है। अब देखो एक फंक्शन डिफाइन है मेरे पास R2R, और फंक्शन क्या डिफाइन है? x रेज टू पावर 3 प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 5। तो अब मुझे इसका इनवर्स फंक्शन बताना है। तो अब देखो कोई भी फंक्शन का इनवर्स निकालना तभी पॉसिबल है जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, ठीक है ना, तभी हम उस फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब देखो मेरे पास y क्या है? एक्स क्यूब प्लस 5। इनवर्स निकालना मतलब देखो अभी मैंने y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट किया हुआ है, इनवर्स निकालना मतलब मैं उल्टा कर रही हूँ अपना ऑर्डर्ड पेयर। तो दैट मीन्स अब मुझे x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो क्या मैं लिख सकती हूँ y माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x विल बी y माइनस 5 रेज टू पावर 1/3। अब मुझे x की वैल्यू ये मिल गई, मतलब मैं हर x को इन टर्म्स ऑफ y ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो क्या मेरे पास इनवर्स फंक्शन नहीं मिल जाएगा मुझे? x माइनस 5 रेज टू पावर 1/3। So this will be my inverse function for the given function. So which option is correct? So here second option is my correct option. Okay. इस तरीके से मैं अपना इनवर्स फंक्शन निकाल सकती हूँ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है मुझे? एक फंक्शन डिफाइन है f और एक और फंक्शन है g,
एंड दोनों फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव फंक्शन गिवन है, तो मुझे दिखाना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑफ एफ इनवर्स. सो consider f inverse of g inverse with composition of g of f. अब देखो मैंने क्या लिया कि जो इसका इनवर्स है ना वो ये होगा. अब अगर मुझे मिल जाता है कि इसका इसके साथ कंपोजिट लेने पे आइडेंटिटी आ रहा है, या फिर इसका इसके साथ कंपोजिट लेने पे आइडेंटिटी आ रहा है, कुछ भी एक कंडीशन मिल जाती है ना, तो वहां से मैं बोल सकती हूँ कि जो मेरे पास इस फंक्शन का इनवर्स होगा वो ये फंक्शन होगा. ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एफ की इन्वर्टिबल होने की क्या कंडीशन है, एफ फंक्शन है उसके इन्वर्टिबल होने की क्या कंडीशन है, कि एफ इन्वर्टिबल तभी होगा when there exists a function g such that f of g और g o f, ये दोनों चीज मुझे अगर आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाती है ना, तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास f का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसी तरीके से इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना मतलब इसका इसके साथ कंपोजिशन और इसका इसके साथ कंपोजिशन मुझे आइडेंटिटी मिल जाता है, तो मैं बोल सकती हूँ मेरे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है इसका. ठीक है, अब मुझे अगर ये कंपोजिशन निकालना है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, इफ एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ. अब मुझे क्या करना है, अब मुझे पता है कि जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो एसोसिएटिव होता है, एसोसिएटिव फंक्शन है, इसका मतलब एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ जी ऑफ एफ भी लिख सकती हूँ मैं इसको. अब मुझे पता है कि अगर जी फंक्शन बाइजेक्टिव है जी फंक्शन, मतलब जी का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो मतलब जी ऑफ जी इनवर्स मुझे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा. ठीक है ना, जैसे मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया था, तो मुझे क्या मिल जाएगा, दिस विल बी आइडेंटिटी ऑफ जी. सो दिस इज आई बी ऑफ फंक्शन एफ. सो अभी किसी भी फंक्शन को आइडेंटिटी के साथ मैप करेंगे तो वो फंक्शन वही मिल जाएगा मुझे. तो दिस विल बी एफ इनवर्स ऑफ एफ. ठीक है, अब जो आई बी है ना यहाँ पे वो आइडेंटिटी है जी फंक्शन की. ठीक है, तो एफ इनवर्स ऑफ एफ, और मुझे वापस पता है कि जो एफ है वो क्या है, अगेन बाइजेक्टिव है, तो इसकी भी आइडेंटिटी मतलब इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एफ. so that means f inverse of g inverse with composition of g of f is equals to identity function. This implies g of f inverse is equals to f inverse of g inverse. अभी हम लोग को मतलब ये आप खुद से चेक कर सकते हैं वापस. अब इसको आगे ले लेना है और इसको पीछे ले लेना है, फिर इसको वापस इस तरीके से शो करेंगे और मुझे आइडेंटिटी मिल जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से मैं शो कर सकती हूँ कि जो f ऑफ जी इनवर्स है वो क्या मिलेगा, f इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. दिस इज माय करेक्ट आंसर. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम r minus 3/5 to r, then we have to select which of the following options is correct. ठीक है, तो अब मुझे एक फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5x माइनस 3. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा नहीं होगा. तो पहले तो मुझे इनवर्स फंक्शन निकालना पड़ेगा इसका. तो हमने मान लिया कि y है, इनवर्स निकालने का मतलब क्या है कि अब मुझे x को एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ y. ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई है, सो दिस विल बी 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5xy देन माइनस 3y. So what it will be? It will be x into 3 minus 5y is equals to minus 3y minus 2. So x will be 3y plus 2 divided by 5y minus 3. So I can say that my inverse function of x will be 3x plus 2 divided by 5x minus 3. अब देखो जो मेरे पास fx फंक्शन था और जो मेरे पास इनवर्स फंक्शन है, तो क्या कोई भी कंडीशन उसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या. मेरे पास इनवर्स फंक्शन देखो, ये fx फंक्शन था और ये इनवर्स फंक्शन है, दोनों क्या सेम सेम दिखाई दे रहे हैं. तो क्या बोल सकती हूँ मैं कि इनवर्स फंक्शन और fx दोनों इक्वल है, नेगेटिव के इक्वल भी नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट है. ठीक है, अब इसमें ये चीज और निकाल सकते हैं. अब एक चीज और, अगर f और f इनवर्स दोनों सेम है ना, इनवर्स और f सेम है, तो
आइडेंटिटी के इक्वल आना चाहिए, बट यहाँ तो माइनस ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर एफ इनवर्स एक्स को एफ एक्स बाय 19, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, राइट, बिकॉज इट इज इक्वल। सो हियर ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, या सो अब इस क्वेश्चन में देखो हमको फंक्शन थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन है, कि हमें बोला गया है कि जो फंक्शन है वो x के इक्वल होगा अगर मेरे पास जो नंबर x है ना वो इरैशनल, सॉरी दिस इज रैशनल, इफ x इज रैशनल, इफ x इज रैशनल, और इट इज 1 माइनस x इफ x इज इरैशनल। ओके, सो ये दो केसेस में मेरे पास मेरे को फंक्शंस डिफाइन है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना एफ ऑफ एफ निकालना है, मतलब एक कंपोजिशन फंक्शन है, मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब मैं क्या करूंगी, दोनों केसेस में निकालूंगी, एक बार जब मेरे पास एक्स है रैशनल से, फिर एक बार जब मेरे पास एक्स होगा इरैशनल से। ओके, तो अब देखो एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है, तो एफ ऑफ एफ एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ ऑफ एक्स। अभी देखो एफ ऑफ एफ एक्स इज व्हाट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स फॉर द रैशनल्स, एंड व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फॉर द रैशनल, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स। तो मतलब रैशनल्स के लिए तो मुझे एफ ऑफ एफ क्या मिल गया, एक्स के इक्वल मिल गया। अब मुझे क्या चेक करना है, इफ एक्स बिलोंग्स टू इरैशनल। अब देखो इरैशनल के लिए क्या होगा, ये फॉर इरैशनल एफ ऑफ एफ एक्स विल बी, this will be same f of x which is equals to f of what is fx for the irrational, this is 1 minus x. Now we have to replace x by 1 minus x for the irrational case, this will be 1 minus x will be replaced by 1 minus x, this is 1 minus 1 plus x, this will be x. So that means I can say that from these two cases f of f will always be equals to x for all x belongs to real number, whether it is irrational, whether it is rational, it will be always be same. So here option C is correct. Okay, अभी मुझे क्या बताना है, इस फंक्शन का मुझको रेंज डिफाइन करना है, व्हाट विल बी द रेंज फॉर दिस फंक्शन। रेंज मतलब बेसिकली जब मैं x की वैल्यूज को डाल रही हूँ ना फंक्शन में, तो मुझे आउटपुट्स क्या क्या मिल रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आउटपुट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। अब जैसे देखो ये जो मेरे को डिफाइन है ना, ये मेरे को डोमेन डिफाइन है, ठीक है, कि मैं x की कौन कौन सी वैल्यूज को डाल सकती हूँ, ठीक है। ये मेरे को कोडोमेन डिफाइन है, कोडोमेन इज नॉट सेम एज रेंज, रेंज इज डिफरेंट, कोडोमेन इज डिफरेंट, दिस इज माई कोडोमेन। और रेंज क्या होगा कि जब मैं डोमेन की ये वैल्यूज को डालूंगी ना, तब मुझे y की क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, दीज आर दी वैल्यूज ऑफ रेंज। ओके, अब देखो मेरे को फंक्शन क्या डिफाइन है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, अगर मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1। अब देखो एक मुझे मिल गया समथिंग का स्क्वायर। अब मेरे को पता है कि जब भी किसी टर्म का मेरे को स्क्वायर मिल जाता है ना, तो ये वैल्यू क्या होती है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ माय डोमेन, डोमेन इज 2 to infinity। अब देखो ये वैल्यू अगर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, अगर मैं इसमें एक नंबर और ऐड कर दूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इस पूरे की वैल्यू चाहिए ना, और ये पूरा किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। तो अगर मैं इसमें एक ऐड कर दूं, सो दिस विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड this is equals to my function, so that means the function की वैल्यू होगी वो greater than equals to 1 होगी ना, 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, 1 से बड़ी होगी तो कहाँ तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसी को कि 1 is less than equals to fx is less than infinity, ठीक है। तो fx belongs to 1 to infinity। okay, so here option B is correct option, ठीक है। तो रेंज को निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं, कभी कभी हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे रेंज निकालना है मतलब हम क्या करते हैं, एक्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है, जैसे हम लोग इनवर्स निकालने के लिए करते हैं। फिर जब मैंने एक्स को वाई की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया ना, फिर मैं ये देखती हूँ कि वाई की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ना एक्स मेरे पास डिफाइन नहीं हो रहा, तो वो जो वैल्यूज होती है ना उनको रिजेक्ट करके जो बाकी वैल्यूज होती है वो हमारी हो जाती है रेंज की वैल्यूज, उस तरीके से भी निकालते हैं।
तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरीके का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग रेंज के डिफाइन करते हैं फंक्शन का, ठीक है। नाउ इन द 45th क्वेश्चन, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n to r, इट इज 2x minus 1 by 2 and g function is x plus 2. So we have to find g of f at 3 by 2. So g of f निकालने से पहले g of मतलब किसी पॉइंट पे निकालने से पहले हमें फंक्शन डिफाइन कर लेना चाहिए. So g of f will be g of fx. This is g of fx is 2x minus 1 divided by 2. अब देखो g of x निकालना है. x g of x की वैल्यू क्या है? x प्लस 2. जो भी x है x की जगह मुझे रिप्लेस कर देना है 2x minus 1 by 2 plus 2. So this is 2x minus 1 plus 2 to the 4 divided by 2. So this is 2x plus 3 divided by 2. अब देखो मुझे क्या करना है, g of f at 3 by 2 कैलकुलेट करना है. So this is 2 into 3 by 2 plus 3 divided by 2. So this will be 2 cancel. This is 6 by 2, that is 3. So correct option is, I think this option is missing. Third option, that will be 3. So third option will be correct option. Okay. So in the next question, a function is defined from r to r and the function is defined like this. This is basically for x which is less than equals to, for x which is greater than 3, the function is 2x. For values between 1 and 3, it is x square. For values which is less than equals to less than equals to 1, the function is 3x. देखो अब हमको क्या करना है, f of -1 plus f of 2 plus f of 4. अब मुझे ये वैल्यूज पे पॉइंट ये पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है फंक्शन की. तो ये देखना है कि पहले कौन से इंटरवल में लाइक कर रहा है. अब देखो -1 है, -1 मतलब कि 1 से तो छोटा ही होगा ये. तो मतलब जो पहले वाला फंक्शन है ना वो है 3x. यहाँ पे मुझे x की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है. फिर मेरे को बोल रहा है 2 पे निकालना है. 2 जो वैल्यू है वो 1 और 3 के बीच में होगा ना, तो मतलब जो दूसरी वाली वैल्यू है वो x स्क्वायर में सब्सटीट्यूट करनी है. फिर 4 है वो इस इंटरवल में होगा, तो मतलब यहाँ मुझे 2x में पुट करना है. देखो पहले में क्या करना है, 3 इंटू -1 प्लस दूसरे में 2 का स्क्वायर कर देना है. फिर थर्ड वाले में 2 इंटू 4. सो दिस विल बी -3 प्लस 4 plus 8. So what this will be? This will be -3 plus 12. So this is 9. So here first option is my correct option. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि भाई कौन सा मेरे पास इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना फंक्शन डिफाइन करूंगी. ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ दैट. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन एक फंक्शन डिफाइन है r to r. फंक्शन इज माई tan x फंक्शन. अब मुझे क्या करना है, इनवर्स वैल्यू निकालनी है 1 पे. तो मैंने लेट कर लिया कि जो y है मेरे पास वो tan x गिवन है. अब अगर y tan x है तो मैं x को क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स y लिख सकती हूँ. दिस इज बेसिकली माई इनवर्स फंक्शन है ना. जब मैंने y को x के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ तो मेरे पास ये fx फंक्शन है. जब मैंने x को y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सो दिस इज माई इनवर्स फंक्शन. सो f इनवर्स x इज tan इनवर्स x. अब मुझे क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है 1 पॉइंट पे. दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1. एंड व्हाट इज tan इनवर्स 1? सो दिस इज tan इनवर्स tan pi by 4 because tan pi by 4 is 1. So that means f इनवर्स 1 will be pi by 4. ठीक है ना. तो इसका मतलब मेरे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. f इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, pi by 4. ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फिलअप्स को फिल करना है जो जो भी ऑप्शन आएंगे. ठीक है, एक मेरे पास रिलेशन डिफाइन किया हुआ है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड इट इज 2a plus 3b इज इक्वल्स टू 30. जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ से पिकअप किए गए हैं. अब देखो अगर मुझे b लिखना है तो b क्या हो जाएगा, 30 minus 2a डिवाइडेड बाई 3. सो दिस विल बी 10 minus 2a डिवाइडेड बाई 3. ये मुझे b की वैल्यूज मिल गई है. अब देखो मैं a की वैल्यूज को ना 1 से स्टार्ट करूंगी. अब देखो अगर मैंने a की वैल्यू को 1 से शुरू किया, क्या मेरे पास 1 से स्टार्ट करने पे काम बनेगा. जैसे ही मैंने a की वैल्यू को 1 लिया तो b क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन में टर्म मिलेगी. बट मेरे पास तो नंबर नेचुरल्स में है ना, तो मैं a की वैल्यू को 1 तो नहीं ले सकती. फिर जैसे ही मैंने a की वैल्यू को 2 लिया, 2 लेने पे भी क्या होगा, मेरे को b वापस से फ्रैक्शन मिलेगा. तो मतलब मैं b की वैल्यू को a की वैल्यू को 2 भी नहीं ले सकती. अब मैं क्या करूंगी, a की वैल्यू को 3 लेके देखती हूँ. क्या 3 लेने से काम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे 3 लेने से a
की वैल्यू और 3 कैंसिल हो रहा है, तो मुझे 10 माइनस 2 मिल जाएगा b की वैल्यू। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो a की वैल्यू को मैं 4 भी नहीं ले सकती, 4 लेते ही वापस होगा फ्रैक्शन मिलेगा b, वो भी नहीं आएगा। फिर मैं a की वैल्यू को 6 देखूंगी, 6 भी नहीं मिल रहा, नहीं 6 मिल जाएगा क्योंकि 6 is a multiple of 3, so this will be 6 will work here. So this is b is equals to 10 minus 2 into 6 by 3. So this is 10 minus, this is cancelled, so this is 4 is equals to 6. अब a की वैल्यू को 7 भी नहीं ले सकती, 8 भी नहीं ले सकती, मतलब जो भी 3 के मल्टीपल्स होंगे ना, दैट वैल्यूज आई कैन टेक हियर। ओके, सो 3 ले लिया, 6 ले लिया, अब मैं 9 ले सकती हूँ सीधा। सो दिस विल बी 10 माइनस 2 इंटू 9 बाई 3, दैट इज 10 माइनस दिस इज 6 इज इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या लूंगी, 12 ले सकती हूँ, राइट। सो 12 लेने पे क्या होगा, 10 माइनस 2 इंटू 12 बाई 3, दैट विल बी 10 माइनस 4 टू ज़ा 8 इज इक्वल्स टू 2। अब देखो जैसे ही मैंने a की वैल्यू को लिया 15 लेते थे, वो क्या होगा, 10 माइनस 2 इंटू 15 बाई 3। अब देखो 5 टू ज़ा 10, 10 माइनस 10 इज 0। अब देखो क्या मैं नेचुरल नंबर में 0 ले सकती हूँ, n में 0 काउंट तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला केस में नहीं ले सकती। इनफैक्ट इसके बाद का कोई भी केस में नहीं अलाउड कर सकती, क्योंकि अब जैसे जैसे मैं a की वैल्यूज को बढ़ाती जाऊंगी ना, वैसे ही मेरे पास ये क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और मुझे b की वैल्यू नेगेटिव्स मिलने लग जाएंगी। मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। तो दैट मीन्स द एलिमेंट ऑफ द रिलेशन आर 3,8, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर। फिर अदर ऑर्डर्ड पेयर आर 6,6, एक ही हो जाएगा। फिर 9,4, एक ये हो जाएगा। फिर एक 12,2। अभी अगर इसमें एक और चीज ऐड कर दे कि डोमेन और रेंज बताओ, तो पहले एलिमेंट जो भी है सेट के ऑर्डर्ड पेयर के, वो डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो क्या बन जाएंगे, वो रेंज के एलिमेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डोमेन रेंज भी बता सकते हैं। नाउ इन द 49th क्वेश्चन, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ A as 1 2 3 4 5 and the relation is defined as all ordered pairs such that mod of a square minus b square is less than a। देखो यहाँ भी मुझे वापस क्या करना है, रिलेशन के एलिमेंट्स बताने हैं। रिलेशन के एलिमेंट्स बताने हैं मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो ये बात का मुझे ध्यान रखना है बस कि एलिमेंट सेट के अंदर आए और ये रिलेशन को सेटिस्फाई करें। देखो मैंने पहले क्या किया, 1,1 लिया। जब मैं 1 को 1 के साथ लूंगी तो 1 स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब मैं 1,1 तो ले सकती हूँ। 1,2 लिया। अब देखो 1,2 इज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज -3। तो मॉड लेने पे +3 हो जाएगा, तो मैं 1,2 भी ले सकती हूँ। फिर बात आती है 1,3 की। अब 1,3 लेने पे क्या होगा, मेरे को इक्वल्स टू 8 मिलेगा, क्योंकि 1 माइनस 9 इज -8, -8 मॉड 8 इज 8, सो दिस विल बी 8। बट मेरे को इक्वल तो नहीं चाहिए ना, मुझे तो लेस देन चाहिए। तो मतलब मैं 1,3 नहीं ले सकती, 1,4 भी नहीं ले सकती क्योंकि ये 8 से ज्यादा हो जाएगा। 1,5 भी नहीं ले सकती क्योंकि ये भी 8 से ज्यादा हो जाएगा। अब मैं बात करती हूँ 2 से शुरू करने वाले, फिर मैं 2,1 ले सकती हूँ, 2,2 भी ले सकती हूँ, 2,3 ले सकती हूँ क्या, 3 3 9 -4 दैट विल बी 5। तो मैं 2,3 भी ले सकती हूँ, मैंने ले लिया ऑलरेडी। 2,4 ले सकती हूँ क्या, सॉरी दिस इज 2,2 एंड दिस विल बी 2,3। फिर 2,4 ले सकती हूँ क्या, 4 4 16, 16 -4 इज 12, तो ये भी नहीं ले सकती। 2,5 भी नहीं ले सकती। फिर 3,1 ले सकती हूँ क्या, नहीं ले सकती क्योंकि मॉड इक्वल्स टू 8 मिल जाएगा। 3,2 इज 9 -4 दैट विल बी 5, तो 3,2 विल वर्क हियर। देन 3,3 भी सही रहेगा। 3,4 चलेगा क्या, 3,4 भी चल जाएगा। डिफरेंस क्या आ जाएगा, लेस देन 8 आ जाएगा। ठीक है, 3,5 काम नहीं करेगा क्योंकि ये डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा। फिर 4,1 नहीं ले सकती, 4,2 नहीं ले सकती, 4,3 ले सकती हूँ। ठीक है, फिर 4,4 भी ले सकती हूँ। ठीक, 5,1 काम नहीं करेगा, 5,2 भी नहीं चलेगा, 5,3 भी नहीं चलेगा, देन 5,4 भी नहीं चलेगा क्योंकि 5 5 25, 25 - 16 दैट इज 9, तो ये भी नहीं चलेगा। देन 5,5। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ माई रिलेशन आर। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे चेक करना है कौन से पे स्क्वायर लेस देन 8 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अब देखो मुझे क्या करना है, 2 फंक्शन डिफाइन है। अभी मेरे को फंक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इज डिफाइंड। ठीक है,
पहले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि मेरे को प्रॉपर फंक्शन डिफाइन था हर वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, यहाँ पे मुझे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स गिवन है उनके लिए निकालना है। अब देखो जब भी मैं जी ऑफ एफ निकालती हूँ ना, तो मेरे पास जो डोमेन होता है ना वो एफ का डोमेन होता है, ठीक है। इस फंक्शन में क्या होता है, डोमेन ऑफ एफ लूंगी मैं, और जब मैं इसको कंसिडर करूंगी तो यहां मैं लूंगी डोमेन ऑफ जी फंक्शन, ठीक है। तो अब देखो जब मैं जी ऑफ एफ निकाल रही हूँ, जी ऑफ एफ, तो मेरे को डोमेन लेना है एफ के एलिमेंट से। तो यहाँ मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स क्या है, 1, 3 और 5। तो मैं शुरू करूंगी 1 से, ठीक है। तो अब देखो पहला एलिमेंट लिया जी ऑफ एफ का, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1, so this will be g of f1 is, what is f1, 1 will map to 2 and g2 is 2 का जो रेंज है वो क्या है, 3 है। so g of f at 1 is 3. Similarly g of f at 3 is my next point, so this will be g of f3. f3 is what, f3 is 3 mapping to 5 and g of 5 is 1. So similarly, g of f at 4, g of f4 is, what is f4? f4 is 1. Now g of 1 is 3. So ये मेरे पास हो गया g फंक्शन। तो g फंक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, g of f is 1 जो मैप कर रहा है वो 3 पे मैप कर रहा है, 3 मैप कर रहा है 1 पर, और 4 मैप कर रहा है 3 पर। ये मेरे पास हो गया g of f एलिमेंट सेट। अब अगर मुझे एफ ऑफ जी डिफाइन करना है तो मेरे पास डोमेन के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जी के जो एलिमेंट्स हैं, तो मैं 2 से शुरू करूंगी, ठीक है। तो जी ऑफ 2 क्या है, 2 मैप कर रहा है 3 पे, फिर एफ ऑफ 3 इज 5। सिमिलरली एफ ऑफ जी ऑफ 5 और एफ ऑफ जी एट 1, तो ये दोनों आप खुद से कैलकुलेट करेंगे और हमें एफ ऑफ जी फंक्शन लिख के बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसे ये फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। मुझे g ऑफ f एट 5 निकालना है और 1 निकालना है, ठीक है। तो ये मुझे पूरा फंक्शन बता के कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ओके। तो नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमको अभी तक तो हमने 2 फंक्शंस का कंपोजिट लिखा है, अब हमको क्या करना है, 3 फंक्शंस का कंपोजिट लिखना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, ठीक है, 3 बार है। तो पहले मुझे एक बार को देखना है ना, ये एफ ऑफ एफ एक्स को देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो ये दिस इज एफ ऑफ एफ, और ये जो एफ एक्स है ना, एफ एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो नाउ दिस इज एफ ऑफ, अब मुझे वापस क्या करना है, जो एक्स है ना फंक्शन में, एक्स की जगह वापस से इसको रिप्लेस कर देना है। सो दिस विल बी x divided by square root of 1 plus x square divided by 1 plus square root of 1 plus square root of 1 plus x square. That means this will be x square divided by 1 plus x square. Okay, तो ये मेरे पास पूरी वैल्यू हो गई इस वाली फंक्शन की। So this will be x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। इसको जैसे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका जो हम एलसीएम ले लेंगे इधर। सो दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, फंक्शन में वापस से इसको सब्सटीट्यूट करना है। सो दिस विल बी x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर divided by square root of 1 plus x square. This is x square divided by 1 plus 2x square. So this will be x divided by square root of 1 plus 3x square. This will be same as this one. Okay. So ये function की value क्या आएगी, x divided by square root of 1 plus 3x square. Okay, this will be my f of fx. Now in the next question we have to find the inverse of the function f. fx function is 4 minus x minus 7 whole cube. मुझे इन्वर्स निकालना है, मतलब अभी जो y x की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है ना, मुझे x को y की फॉर्म में निकालना है। ओके, सो हियर y is 4 minus
x minus 7 whole cube. So what will be the value of x in terms of y? So x minus 7 whole cube is 4 minus y. Okay. So अब मुझे अगर मुझे x निकालना है, so this will be 4 minus y raised to power 1 by 3. So the value of x is 7 plus 4 minus y raised to power 1 by 3. So this is x in terms of y. So I can say that f inverse x would be 7 plus 4 minus x raised to power 1 by 3. So this is the inverse function for the given function fx. Okay. In the given statement, we have to state whether the given statements are true or false. Okay, if it is false, then we have to give a counter example for that case. Okay. So now let R be the relation defined on the set A as 1, 2, 3 and the relation is symmetric, transitive and not reflexive. तो बताना है कि जो गिवन है वो ट्रू है कि नहीं है. ठीक, तो अब देखो सेट में 1, 2, 3 है, सो इसका मतलब 1, 1 2, 2 3, 3 तो सेट के अंदर होने ही चाहिए, रिलेशन के अंदर होने ही चाहिए, बट इनमें से कुछ भी नहीं है ना. दीज एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ. ये बात तो इसने सही लिख दी. अब देखो 1, 3 के लिए 3, 1 है, 1, 3, 3 के लिए 3, 3 है, सो इसका मतलब सिमेट्रिक तो हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा. अब बात आती है ट्रांजिटिव की. क्या ट्रांजिटिव है? उसके लिए मैंने क्या किया, एक ऑर्डर्ड पेयर लिया 1, 3, 1, 3 और एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया 3, 1. ठीक है, तो क्या a, c दैट इज 1, 1 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? नो. तो इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं हुआ. तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो मेरा फॉल्स है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो, बट ट्रांजिटिव तो है ही नहीं ना. Now in this question we have to check whether the function is invertible or not. Okay, function is sin of 3x plus 2. अब देखो invertible होने का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन मेरा 1, 1 भी होना चाहिए और फंक्शन मेरा ऑन टू भी होना चाहिए. अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो मेरे पास फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा. अब देखो मुझे पता है कि जो साइन एक्स की जो रेंज है वो -1 to 1 है. ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम 1 हो सकती है, बट इट इज सेइंग दैट कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स. सो अगर साइन ऑफ एक्स की रेंज -1 to 1 है तो साइन ऑफ 3x plus 2 की रेंज भी क्या होगी? -1 to 1 ही होगी ना. सो द रेंज ऑफ द फंक्शन इज -1 to 1. बट जो मेरा कोडोमेन है, व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन इज आर. These both are not equal. If these are not equal, that means my f is not onto. और अगर onto ही नहीं हुआ तो invertible की बात कहाँ से आ गई? तो इसका मतलब ये जो मेरे पास given statement है वो क्या है? false statement है ना. So this will be false. ठीक है. Now in the next question it is saying every relation which is symmetric and transitive is also reflexive. हर रिलेशन जो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है वो रिफ्लेक्सिव भी होगा. भाई ऐसा कहाँ लिखा है? अगर मैं कोई ऐसा रिलेशन ढूंढ के दिखा दूं जो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है लेकिन वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल मिल जाए मुझे. मैंने मान लिया कि मेरे पास जो सेट है ए वो मैंने 1, 2, 3 ले लिया. ठीक है, अब मैंने एलिमेंट्स इस तरीके से लिए. देखो 1, 2 ले रही हूँ तो मेरे को 2, 1 तो लेना पड़ेगा. ठीक है, ये मेरे को दिखाना है सिमेट्रिक. फिर मैंने एक एलिमेंट और ले लिया 1, 1 क्योंकि मेरे को इसको ट्रांजिटिव दिखाना है ना. तो 1, 2, 2, 1 के लिए 1, 1 ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए. और एक मैंने ले लिया 3, 3 ले लिया. ठीक है, या फिर 2, 2 ले लेते हैं. ठीक है, अब देखो ये मेरे पास रिफ्लेक्सिव तो नहीं है क्योंकि 3, 3 ऑर्डर्ड पेयर नहीं है. 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक है, तो 3, 3 नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है. यहाँ पे सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है क्योंकि 1, 2 के साथ 2, 1 भी है और 1, 1 का रिवर्स ऑर्डर पे 1, 1 है, 2, 2 का रिवर्स 2, 2 है, तो सिमेट्रिक हो गया ये. और ट्रांजिटिव भी हो गया क्या? हाँ ट्रांजिटिव भी है. ठीक है, हर एलिमेंट के लिए मेरे पास यहाँ ट्रांजिटिव भी हो रहा है. तो यहाँ पे ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है. उसने कहा था कि ऐसा होना जरूरी है, अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, बट ये तो हमें उल्टा मिल गया ना. तो मतलब जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गया. ठीक है, अभी इसमें क्या कह रहा है? एक इंटीजर
m is said to be related to another integer m if m is an integral multiple of n. So this relation is reflexive, symmetric and transitive. अब क्या कह रहा है कि ये इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. अब देखो मैंने पहले रिफ्लेक्सिव देखना है. रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं सेम ऑर्डर्ड पेयर लूं m कॉमा m, तो m जो है वो 1 टाइम होगा ना m के, तो इंटीग्रल मल्टीपल तो हो जाएगा ना, चाहे वो 1 के मल्टीपल का ही क्यों हो, इंटीग्रल मल्टीपल तो है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो गया. ठीक है. अब बात आती है सिमेट्रिक की. सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा. ठीक है. सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या किया, सपोज 2 और 6 ले लिया. अब देखो 2 तो इंटीग्रल मल्टीपल है 3 का, 2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, नो रिवर्स ऑर्डर पे लेना पड़ेगा ना. फर्स्ट इज अ मल्टीपल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सेकेंड. सो अगर मुझे 6,2 लेना है बिलोंग्स टू R, सो 6 कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2, बट 2 कैन नॉट बी रिटन एज समथिंग इंटू 6, राइट. नहीं लिखा जा सकता ना. मैं कुछ भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लूँ, इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं 1/3 डाल दूँ मेरा काम हो जाएगा. इंटीग्रल थोड़ी ना हुआ, ये तो मेरे पास रैशनल नंबर हो गया ना, तो मुझे इंटीग्रल मल्टीपल चाहिए. ठीक है. तो सिमेट्रिक तो प्रूव नहीं हुआ मेरे पास. अगर पहला दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल है तो दूसरा भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ. अब बात आती है ट्रांजिटिव की. ठीक है. अब मान लो कि mn और n कॉमा p ये मेरे पास R से एलिमेंट है, तो मतलब m इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ये मान लिया मैंने, a टाइम्स है n के, और जो n है वो सपोज b टाइम्स है अनदर एलिमेंट p के. तब मुझे दिखाना है कि जो, भाई देखो पहला एलिमेंट दूसरे के इंटीग्रल मल्टीपल है, दूसरा एलिमेंट तीसरे के, तो मैं बोल सकती हूँ ना कि जो m है वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा p के. सम अनदर इंटीजर सपोर्ट c, so this will be m is equals to c into p. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो m कॉमा p ऑर्डर्ड पेयर है, m कॉमा p है, वो बिलोंग करेगा R में. सो इट इज ट्रांजिटिव. बट यहाँ इसने बोला कि इस रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव. सो दिस इज फॉल्स. ठीक है. नाउ इन दिस 57 क्वेश्चन एक सेट दिया हुआ है हमको 0,1 का, और n भी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. और जो मैपिंग है ना, देखो बोल रहा है, देखो नेचुरल नंबर्स है डोमेन में, तो जितने भी ऑड नंबर्स है ना वो सारे मैप हो रहे हैं 0 पर, और जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सारे मैप हो रहे हैं 1 पे. तो क्या मैं बोल सकती हूँ क्या, जो मेरे पास रेंज है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 और 1, 2 एलिमेंट्स आएंगे ना, ये 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं रेंज के अंदर. और जो मेरा कोडोमेन है, कोडोमेन इज ऑल्सो व्हाट, कोडोमेन इज a विच इज इक्वल्स टू 0, 1. तो अगर कोडोमेन और रेंज दोनों सेम आ जाए तो इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू. यही बोल रहा है ना वो क्वेश्चन में कि फंक्शन ऑन टू है, तो सही बात बोली है इसने. ठीक है. अब मुझे यहाँ वापस चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं. भाई देखो यहाँ पर मेरे पास 58 क्वेश्चन में 2 एलिमेंट नहीं है. 2 एलिमेंट नहीं है मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव. ठीक है. अब मेरे को चेक करना है सिमेट्रिक है कि नहीं है. सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है, 2 1 है, 3 3 है, 1 1 है. ठीक है. तो इसका मतलब सिमेट्री की कंडीशन तो है. सिमेट्री की क्या कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो दिस इम्प्लाइज बी ए शुड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर. सो मतलब रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक भी हो जाएगा. अब बात आती है ट्रांजिटिव की. ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव के लिए सपोज मैंने अगर 1 2 ऑर्डर्ड पेयर लिया और 2,1 ऑर्डर्ड पेयर लिया, तो 1 1 तो आ रहा है, बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका मतलब ट्रांजिटिव भी हो जाएगा. आर इज ट्रांजिटिव ऑल्सो. बट इसने बोला है कि ये तीनों है, इसका मतलब इसने गलत बोला है ना, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं ना. ठीक है. नाउ द कंपोजिशन फंक्शन इज कॉम्पोजिट, सॉरी द कंपोजिशन फंक्शन इज ऑलवेज कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव मतलब कि f ऑफ g निकाले और g ऑफ f निकाले, वो हमेशा सेम ही आएगा कंपोजिट फंक्शन के लिए. ठीक है. तो अब मैंने 2 फंक्शंस लेट कर लिए. सपोज मेरे पास f(x) फंक्शन है x+1 और सपोज gx फंक्शन है
दिस इज सपोज एक्स क्यूब, ठीक है। अब अगर मैं एफ ऑफ जी निकालूं तो एफ ऑफ जी क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स इज व्हाट इज जी एक्स इज एक्स क्यूब, तो दिस इज एक्स क्यूब। अब देखो जहां भी एक्स है ना वहां पे एक्स क्यूब डाल देना है, तो एक्स क्यूब प्लस वन हो गया। अब निकालना है मुझे जी ऑफ एफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स इज एक्स प्लस वन, जहां भी एक्स है ना एक्स प्लस वन डाल देना है। तो अब देखो दोनों वैल्यूज अलग अलग आ रही है ना, तो इसका मतलब कंपोजिशन फंक्शन कम्यूटेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, अब बोल रहा है कि कंपोजिशन फंक्शन एसोसिएटिव होगा। तो देखो कोई भी तीन फंक्शन, जैसे मैंने पिछले वाले में लिए है ना तीन फंक्शन, तो ऐसे एक काम कर सकते हैं, कोई भी तीन फंक्शन ले लो, एक्स जी एक्स ले लो एक्स स्क्वायर, और एक और ले लेते हैं एच एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स प्लस वन। ठीक है, तो अब मेरे को ये दिखाना है कि एफ ऑफ जी ऑफ एच, दिस फंक्शन विल बी सेम एज एफ ऑफ जी ऑफ एच। ठीक है, तो ये है मेरे पास हमेशा इक्वल आता है, तो हम ये चेक भी कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, so this will be always associative, so this is true statement, so you can check on your own. So now in this question every function is invertible, so is it true that every function is invertible? No, only those functions are invertible which are 1 1 and on 2, so that functions are only invertible, so that means the functions which are bijective functions. Okay, so my given statement is false, every function is not invertible. Okay, so suppose I'm considering a function f from z to z and fx is equals to x cube. So is this function invertible? No, because this function is 1 1 but this is not an onto function, so we cannot find the inverse for this function. Okay, so now in the next question, a binary operation on a set has always the identity element, so it is not necessary that a binary operation on a set always has the identity. Suppose I'm considering a set of natural numbers and with the addition operation. Okay, तो अभी अगर मैं पूछूं कि मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स के सेट में जो एलिमेंट्स है उसका आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो मैंने कोई एक एलिमेंट लिया ए में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिल जाए, तो दैट मस्ट बी जीरो, बिकॉज आफ्टर एडिशन विद जीरो आई कैन ओनली गेट ए, राइट। सो दिस इम्प्लाइज, बट जो जीरो है वो एन से तो नहीं बिलोंग कर रहा ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आइडेंटिटी है नॉट एग्जिस्ट हेयर। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करी तो ऐसा जरूरी नहीं है ना हमेशा कि आइडेंटिटी हो बाइनरी ऑपरेशन में, सो माय गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, तो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा मुझे आइडेंटिटी मिले, तो मैं ऐसा कोई एग्जांपल ढूंढ सकती हूँ इसे काउंटर करने के लिए। ओके, so that's all about today's video, and if you like the video, hit the like button and share to your friends and subscribe to our YouTube channel. See ya, bye bye.